السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے خونی کہاوت ایپیسوڈ نمبر 14۔ مولوی صاحب اپنے عمل سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ میں خاموشی سے بیل گاڑی سے نیچے اتر آیا اور اس کے بعد رینگتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اچانک ہی لوگوں کے منہ سے طرح طرح کی آوازیں نکلنے لگی تھی۔ سارے کے سارے بھرا مار کر پیچھے ہٹ گئے تھے اور میرے لیے جگہ چھوڑ دی گئی۔ میں نے مولوی صاحب کو دیکھا، تھر تھر کانپ رہے تھے، آنکھیں پھٹی ہوئی تھی، ہاتھ میں پانی کا پیالہ تھا جو لرزنے کی وجہ سے چمک رہا تھا اور پانی خود ان کے ہی اوپر گر رہا تھا۔ ٹھاکر پراتھنا مورتی کے پاس پہنچ گیا اور میں نے اس کے ران کے پاس وہ زخم دیکھا جو سانپ کے کانٹے کا زخم تھا، اور پھر میں نے اپنا منہ اس کے زخم پر رکھ دیا۔ اس کے جسم میں زہر بھرا ہوا تھا اور میں نے وہ سارا زہر چوس لیا، اور دیکھنے والوں نے یہی دیکھا کہ جسونت مورتی کی نلاہٹیں سرخی میں بدلتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ میرا منہ میں اس کے خون کے قطرے آنے لگے، گویا سارا زہر اس کے جسم سے ختم ہو گیا تھا۔ بس اتنا ہی کرنا تھا مجھے۔ میں پیچھے ہٹا اور ایک لمحے کے لیے وہاں رہا اور پھر برق رفتاری سے وہاں سے واپس پلٹ پڑا۔ سب سے مشکل مرحلہ تھا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس دوران کوئی میری جانب متوجہ ہوئے اور میرا تعاقب کرنے کی کوشش کرے۔ میں جسونت مورتی کے سامنے سے ہٹ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ شکر ہے کسی نے میرا پیچھا نہیں کیا تھا، وہ سب سکتے کے عالم میں مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں باہر نکل آیا اور اپنے چھپنے کے لیے جگہ تلاش کرنے لگا۔ باہر لوگ موجود نہیں تھے، سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ ان حالات میں مجھے سفر کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی تھی۔ فی الحال مولوی رحیم اللہ کے گھر ہی آ گیا تھا اور چھپتا چھپتا برگد کے درخت پر چڑھ گیا تھا۔ یہاں میرے لیے انتہائی بہترین جگہ موجود تھی، ایسی جگہ جہاں زیادہ وقت گزارنے کو دل چاہے تو وہیں مستقل قیام کر لیا جائے۔ درخت میں ایسے سوراخ بھی تھے جہاں سے باہر دیکھا بھی جا سکتا تھا اور وہاں کی باتیں بھی سنی جا سکتی تھیں۔ بہرحال جو خوشی مجھے یہ کام سر انجام دے کر محسوس ہوئی تھی، وہ ان خوشیوں سے مختلف نہیں تھی جو رام لال اور کاکو لال کی مشکلات دور کرنے سے حاصل ہوئی تھی۔ مولوی صاحب بیچارے جن حالات کا شکار تھے، ہو سکتا ہے کہ ان میں کچھ تبدیلیاں ہو جائیں۔ خاصا وقت انتظار کرنا پڑا تھا اور اس کے بعد باہر آہٹیں محسوس ہوئیں۔ اس دوران میں نے مولوی صاحب کی بیوی اور اس کے بچوں کو بہت پریشان دیکھا تھا۔ باہر ہی سب کے سب رحیم اللہ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ رحیم اللہ کی بیوی بار بار اونچی آواز میں دعا مانگنے لگتی تھی، الہی خیر کرنا۔ میں نے پہلے ہی منع کرتی تھی کہ جانتے وانتے کچھ نہیں ہیں، بلا وجہ کے پیر بن بیٹھے ہیں، پکڑ لیا نا کسی جن بھوت نے تو گردن مروڑ کر پھینک دے گا، اور جیسے بھی ہیں میرے بچوں کے سر کا سائبان ہیں، خیر کرنا الہی۔ اور پھر وہ بچوں پر سے برسنے لگیں۔ ارے کیا بیٹھے بیٹھے کسر پھسر کیے جا رہے ہو؟ میں کہتی ہوں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو اللہ سے کہ ابا کو سلامت رکھے اور انہیں خیر سے واپس لائے۔ بہرحال ابا خیر سے واپس آ گئے، باچھیں کھلی ہوئی بیساکھی ٹیک کر چل رہے تھے۔ بیوی نے جلدی سے آگے بڑھ کر انہیں سہارا دیا، دیکھنا چاہتی تھی کہ کہیں سے ٹوٹ پھوٹ تو نہیں ہوئی، لیکن سب ٹھیک تھا۔ مولوی رحیم اللہ نے ساتھ آنے والوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا، جاؤ بھائی، بہت بہت شکریہ تمہارا۔ مولوی صاحب آپ نے جو کیا ہے اس سے بستی کی تاریخ بدل جائے گی۔ ہندو مسلمانوں میں ایسی دوستی ہوگی کہ مثال بن جائے گی۔ ہاں خدا ایسا ہی کرے میاں، ہم تو جو کچھ کیا ہے نیک نیتی سے کیا ہے، باقی اللہ کا شکر ہے کہ ٹھاکر پرتھنا کے گھر کا چراغ روشن ہو گیا۔ ارے اس سے زیادہ خوشی ہمیں اور کس بات کی ہو سکتی ہے؟ اللہ ہمیشہ اس کے گھر کا چراغ روشن رکھے۔ مولوی رحیم اللہ کی بیوی حیرت بری نگاہوں سے مولوی صاحب کو دیکھ رہی تھی اور اس نے جلدی سے وہ چارپائی بچھا دی۔ مولوی صاحب کی مخصوص چارپائی تھی اور وہ چارپائی پر بیٹھ گئے۔ کیا ہوا؟ کیا ہو گیا؟ ارے ہونا کیا تھا، تو سوچ بھی نہیں سکتی نصیرہ، جو ہو گیا۔
यूं समझ ले कि अल्लाह ने सुन ली, और जब वो देता है तो ऐसे ही देता है। कुर्बान जाऊं अपने मौला के, अरे ज़िंदगी बन गई हमारी, सारे दिल दर्द दूर हो गए। ख्वाब देख रहे हैं क्या मौलवी साहब? बक बक किए जा रही हो, अरे सुन तो सही हुआ क्या। सुनाओ सुनाओ, हमारी तो ज़ुबान सूख गई तुम्हारे लिए दुआएं करते करते। क्यों नहीं, तेरी और तेरे बच्चों की दुआएं ही तो काम आई है नसीरा। हुआ क्या होना था? ठाकर प्रार्थना के बेटे जसवंत मूर्ति को सांप ने डस लिया था। अब तुम उन लोगों के टूने तोड़ के तो जानती ही हो, और वो मैयत रखी हुई थी, मर चुका था बेचारा, नीला पड़ा हुआ था, पूरे बदन में जहर भरा हुआ था, और जो होते हैं ना सपेरे, बैंकी जो कहलाते हैं, बैंकी आए हुए थे, और थाली बज रही थी, बैठे बज रही थी। 3 दिन गुजर चुके थे, मगर ठाकर प्रार्थना का मन नहीं मानता था कि बेटा मर चुका है। आस लगी हुई थी। कुर्बान जाऊं अपने मौला के, और मेरे ही लिए ये सर बुलंदी लिखी थी उसने। ठाकर प्रार्थना कदमों में गिर पड़ा कि मौलवी साहब, हमारे घर का चिराग बुझने से बचा लो। बस जी, मौलवी साहब बेचारे तो खुद ठहरे कलाश। हाँ, अल्लाह से लो ज़रूर लगाई। और तू सच जान नसीरा कि उस वक़्त दिल में कोई लालच नहीं था। ये लालच नहीं था कि ठाकर प्रार्थना का बेटा हमारी वजह से ठीक हो जाए तो कुछ इनाम की राम मिले। ये लालच बिल्कुल नहीं था, बल्कि सच्ची बात ये थी। और उस वक़्त एक दुखी दिल का आदमी देखा, खुद भी बाल बच्चों वाले हैं, और सच्चे दिल से दुआ मांगी थी। और हमारे मुंह से क्या इलाही, हम क्या और हमारी औकात क्या, हमारी लाज रखने वाला तू है। बस पानी पी लिया, पड़ा और 4 छींटे मारे, और लोगों को दिखाने के लिए इधर उधर छींटे मार दिए। बस फिर खुदा का करना क्या हुआ कि एक लंबा कई हाथ और कई चौड़ा नाग, काला नाग, देखने वालों की आंखें फट गई थी। और यकीन करो नसीरा, खुद हमारा दिल धड़कना बंद हो गया था। हमने सोचा कि भैया एक फुंकार भी मार दी उसने तो हम तो पानी पानी हो जाएंगे, मगर बात वही थी नसीरा, दिल से निकली थी, पूरी हो गई। सांप ने जसवंत मूर्ति के ज़ख्म से मुंह लगाकर और जो जहर चूसा तो सातों यूं लगा कि जैसे रंग ही बदलता जा रहा है, और सर से नीलाहटें उतरी तो पाँव से बाहर तक उतर गईं। सारा जहर चूस लिया उसने, और जैसे ही वो जहर चूस कर बाहर निकला, जसवंत मूर्ति भैया उठकर बैठ गया, पानी मांगा। बस फिर क्या था, उसे पानी पिलाया गया। और वो जो सपेरे आए थे, ऐसे जल भुनकर कबाब हो गए कि उनका मुंह देखने से ताल्लुक़ रखता था। ठाकुर प्रार्थना ने बेटे को कलेजे से लगा लिया, सारे के सारे धाड़े मार मार कर रोने लगे। और नसीरा, तू ही तो बता, और इस वक्त क्या ये देख के जिसे देखो तेरा इस गरीब लाचार शोहर पर दीवाना वारनसार हो रहा है, और न जाने क्या क्या बातें कर डाली लोगों ने। पर देख, हमने तो उनसे यही कहा कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। हमने कुछ नहीं किया, बस दुआ थी कि ठाकुर प्रार्थना के घर का चिराग रोशन रहे। बस भैया, हमने क्या कहा। और ठाकुर साहब, अब ये भीड़ बनाओ और बच्चों को अंदर ले जाओ, हमें जाने दो। ठाकुर प्रार्थना कहने लगे कि मौलवी रहीमुल्लाह साहब, आपने मेरे घर का चिराग रोशन किया है, मैं आपके घर में दिवाली कर दूंगा। आप जाएं, आराम से जाएं। और फिर बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ हमें वापस कर दिया गया। कुछ दिया नहीं उन्हें। अरे छोड़ो नसीरा, हमें उससे बड़ी दौलत और क्या मिल सकती है कि इतनी इज्जत हुई, इतना एहतराम किया गया हमारा। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि ठाकुर साहब का बेटा ठीक हो गया। बस भैया देख लो, रोटी और वो कपड़े चाहिए होते हैं ना, ये तो अल्लाह दे ही देता है, मगर ऐसी सच्ची खुशी अगर मिल जाए तो समझ ले कि अल्लाह ने सब कुछ दे दिया। दुआ पूरी हो गई हमारी, और उससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। नसीरा ठंडी सांस लेकर खामोश हो गई, और उसके बाद वह सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ था कि ठाकुर ने अच्छा नहीं किया, बेचारे मौलवी रहीमुल्लाह को कुछ देना चाहिए था उसे। खैर कोई बात नहीं, कम अज़ कम मौलवी रहीमुल्लाह के अंदर इंसानियत थी। रात हो गई और फिर रात गुजर गई और दूसरा दिन निकल आया। 1-2 आदमी मौलवी साहब से दुआ तवीज़ करवाने आए थे। एक साहब एक बर्तन में खाने पीने की कुछ चीज़ें भी लेकर आए थे, और जिस पर रुमाल ढका हुआ था। बस यही मौलवी साहब का ज़रिया माश था। लेकिन सूरज चढ़ा ही था कि अचानक बाहर से आवाज़ें आना शुरू हो गईं।
जोर से दरवाज़ा बजा, दरवाज़ा खोला गया और मैंने देखा कि ठाकुर प्रार्थना अपने बेटे जसुनत मूर्ति, धर्म पत्नी और कई दूसरे आदमियों के साथ दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। मौलवी साहब चारपाई पर बैठे हुए थे। जल्दी से बैसाखी संभाली तो ठाकुर प्रार्थना दौड़ता हुआ आया और मौलवी साहब के शानों को सहारा देकर बोला, बैठे रहें मौलवी साहब, बैठे रहें आप। और आपने क्यों तकलीफ़ की? कोई बात हो गई है? मैं मुझे बुला लिया होता। मेरे घर में तो बैठने के लिए कुछ नहीं है। अरे नसीरा, अरे बेटी नूरी, चादर ले आओ, चादरें बिछा दूँ यहाँ पर। चादर लाएगी और ठाकुर प्रार्थना मूर्ति बड़े एहतराम के साथ चादर पर बैठ गया और बाकी लोग भी बैठ गए। मौलवी रहीमुल्लाह ने जसुनत मूर्ति को देखा और बोले, बेटा ज़रा इधर आ, मैं तेरी पेशानी चूम लूँ। खुदा की कसम खाकर कहता हूँ ठाकुर साहब, ऐसे लग रहा है कि जैसे मेरा बीमार बेटा ठीक हो गया है। हमें तो सिर्फ इस बात का अफसोस है मौलवी रहीमुल्लाह साहब कि हमारे अपने घर में, हमारी अपनी बस्ती में इतनी बड़ी शख्सियत मौजूद है और हम उसकी कोई कद्र, कोई इज़्ज़त ना कर सके। आप इस आलम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ मौलवी साहब कि मैं एक बेहद खुदगर्ज और मतलबी आदमी हूँ। जब अपने ऊपर पड़ी तो दूसरों के बारे में सोचा। आपने मौलवी साहब मेरे ऊपर जो एहसान किया है, बस मेरी समझ में नहीं आता कि मैं इस एहसान को कैसे उतारूँ। अरे छोड़ो प्रार्थना मूर्ति, औलाद सब की औलाद होती है और हर साहब औलाद को दूसरों की औलाद के लिए अच्छे ही जज्बात रखने चाहिए। अल्लाह वाले हैं ना आप। भगवान ने आपको इतना कुछ दिया है कि आपको दूसरी चीज़ों की चिंता नहीं है, मगर हमारा भी कुछ फ़र्ज़ है मौलवी साहब। एक छोटी सी भींट देने आए हैं आपको, बहुत छोटी सी भींट। स्वीकार कर लें, हमारे ऊपर एहसान होगा। नहीं ठाकुर साहब, इसके बदले मैं कुछ नहीं लूँगा। बस मैंने कह दिया तुमसे। अरे क्या है, वो 2 रोटी की बात है ना कहीं से बंदोबस्त हो जाता है। अपाहज हो गया हूँ, लाचार हो गया हूँ, वरना मेहनत मजदूरी करके तो सारी ज़िंदगी गुजार दी। अब ज़रा हालात ख़राब हो गए हैं, मगर कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है, सब ठीक हो जाएगा। ये तो आप कह रहे हैं ना मौलवी साहब, मेरा मसला कुछ और है और मुझ पर भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है ना। सुने मौलवी साहब, आपको जसुनत मूर्ति ही की कसम है, जो कुछ मैं भेंट कर रहा हूँ और उससे इनकार ना करें। अरे ठाकुर साहब, क्या कसम दिला दी भाई, क्या दे रहे हो भाई मुझे, ज़रा बताओ तो सही। मौलवी साहब ने बेपरवाही से कहा। मौलवी साहब, वो मेरा निकलने वाला बाग है ना, 8 पैकेट में फैला हुआ, शायद आपको पता हो कि सोना उगलता है सोना, और मैंने अपने जसुनत मूर्ति पर से सोना ही वार दिया है। वो बाग में आपके नाम लिख रहा हूँ और इसके अलावा मौलवी साहब, आपके रहने के लिए बाग के किनारे पर ही एक घर बना हुआ है और वो भी मैंने आपके नाम कर दिया। ये मेरी धर्म पत्नी आपके बीवी बच्चों के लिए कुछ गहने लाई हैं, बच्चियां हैं आपकी और उनके काम आएंगे, ये स्वीकार कीजिए। ठाकुर साहब की धर्मपत्नी ने एक पोटली मौलवी साहब के सामने रख दी। मौलवी साहब को तो सकता हो गया था। ठाकुर प्रार्थना मूर्ति ने एक रुमाल मौलवी साहब की तरफ बढ़ाते हुए कहा, और इसमें थोड़ी नकद रकम है, बस ये लाए हैं हम आपके लिए। वो बाग आपके लिए जीवन भर काम देगा, आपके बच्चों और उनके बच्चों के काम आएगा। आपको पता ही नहीं निकले वाले बाग की क्या कैफियत है, बड़ा फल उतरता है उससे और बहुत बड़ी आमदनी है इसकी। अब आप ज़िम्मेदार हो गए हैं मौलवी रहीमुल्लाह साहब। मौलवी रहीमुल्लाह इस तरह मुंह खोले बैठे हुए थे कि महसूस होता था कि बदन की जान ही निकल गई। बुरी तरह सटपटाए हुए थे और मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकल रहा था। ठाकुर साहब प्रार्थना मूर्ति ने कहा, और आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए, सब देखभाल हम करेंगे, भाग दौड़ भी नहीं करनी पड़ेगी आपको। 4 आदमी काम करते हैं उस बाग में, बड़े आराम से उनकी पगार निकल जाती है। यूँ समझ लें कि ये सारे काम हमारे मुंशी जी ही कर लिया करेंगे, आप बस उसकी आमदनी संभाला करें मौलवी रहीमुल्लाह साहब। अच्छा, अब हमें आज्ञा दें। मौलवी साहब कुछ ना बोले तो ठाकुर साहब ने उठकर उनका शाना हिलाते हुए कहा, मौलवी साहब चुप क्यों हो गए हैं? कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही ये सब। हाँ, ये सब आपका हुआ और आपने हमारे घर का चिराग रोशन किया है। हमने कल ही आपसे कहा था कि आपके घर में दिवाली कर देंगे। मौलवी साहब, भगवान का शुक्र है कि हमने अपना कौल निभा दिया। अच्छा, आज्ञा दें। बमुश्किल तमाम मौलवी साहब ने ठाकुर साहब से हाथ मिलाया और उसके बाद वह सब एक एक करके घर से बाहर निकल गए।
नसीरा बेगम, बच्चे सारे के सारे यूं खड़े हुए थे। मौलवी साहब पर ऐसा जोश तारी हुआ कि अपनी जगह से उठकर भागने की कोशिश की और धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़े। अरे अरे, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अल्लाह की नेकी, ये आप क्यों दौड़ पड़े? नसीरा बेगम ने उन्हें सहारा देकर उठाया और मौलवी साहब अजीब से अंदाज में हंस पड़े। अरे नसीरा बेगम, एक पाँव गया था, हज़ारों पाँव लग गए। ले देखा, क्या कहा था ना तुझसे कि एक दिन घोड़े की भी फिरेगी। अरे भाई, क्या नसीरा, फिर गई ना। अरे मेरे बच्चे आओ, मेरे कलेजे से लग जाओ। अरे सब के सब वारे के न्यारे हो गए। मौलवी साहब की खुशियाँ बामे अरूज को पहुंची हुई थी। सारा घर ये सब कुछ पाकर दीवाना हो गया था और यूं महसूस होता था कि कहीं उन्हें शादी मर्ग ना हो जाए। खुशी से नाच रहे थे बेचारे, और मौलवी रहीमुल्लाह की एक टांग नहीं थी, वरना वो भी रक्स करते। और दरख्त के उस चौड़े से तने और उस सुराख में बैठकर मेरा दिल भी रक्स कर रहा था। किसी इंसान को इतनी खुशियाँ मेरे ज़रिए मिल जाएं, मेरी ज़िंदगी का इससे बेहतर मुसर्रफ हो ही नहीं सकता था। लानत है पदम चंदी पर, लानत है उस पर कि उसने मुझे खुशियों से इतनी दूर कर दिया। लेकिन बहर तौर कोई नतीजा निकलेगा। जिस तरह उन लोगों की ज़िंदगी ठिकाने लग रही थी, मेरे दिन भी फिर जाएंगे। देखूंगा पदम चंदी, देखूंगा धनराज। बल्कि अब मैं तुझे धनराज क्यों कहूँ, ये तो एहतराम का नाम है। पदम चंदी, एक दिन ऐसा होगा कि मेरे ही हाथों तेरा अंत होगा, और ये सब मेरे दिल में आरज़ू है। देखूंगा तुझे। मुख्तलिफ कफ़ियात का शिकार था और मौलवी साहब के घर में खुशियाँ उतर आई थी। अंदर चले गए थे और वो अंदर का हाल मैं नहीं जान सकता था। ये हाल जानने के लिए अंदर जाना मुनासिब ही नहीं था, क्योंकि उन बेचारों को मालूम भी नहीं था कि उनके साथ साथ एक और बस्ती भी उनकी खुशियों में शरीक है। बहरहाल मेरा काम पूरा हो गया था। मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती थी। इस तवील तरीन ज़िंदगी के लिए कुछ तो चाहिए था, और पदम चंदी जैसे शैतान से जो कुछ हासिल हुआ था, उससे उसके दुश्मनों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की बजाय अगर ऐसे लोगों के लिए कुछ किया जाए तो ज़िंदगी का उससे बेहतरीन मुसर्रफ और क्या हो सकता है। ये बात दिल में ठान ली, और उससे दिल को जो सुकून मिला वो नाकाबिले बयान था। असूली तौर पर तो अब मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए था, लेकिन इंसानी खुशियों से बहुत ज़्यादा दूर नहीं हुआ था और उस घर की खुशियाँ देखना चाहता था। फिर मेरी वजह से उनको तकलीफ़ भी नहीं थी, और इसलिए कुछ वक्त यहाँ गुजारने का फ़ैसला कर लिया। बड़े अच्छे मनाज़र देखने को मिल रहे थे। मौलवी साहब ने बच्चों के लिए ख़रीदारी की। बच्चे अच्छे अच्छे कपड़े पहनने लगे, अच्छा खाना पकता, और लोग अब भी मौलवी साहब से झाड़ फूंक कराने आया करते थे। एक दिन ऐसे ही कुछ लोग आए तो मौलवी साहब ने कहा, देखो भाइयों, मुझे गुनाहगार मत करो। ना मैं पीर हूँ, ना फ़कीर, ना दरवेश, और मुझे कुछ नहीं आता जाता। बस तुम लोग आते हो तो अल्लाह का नाम पढ़कर फूंक देता हूँ और उससे दुआ करता हूँ कि माबूद करीम बीमार को शिफा दे। तुम्हारी दुआ में तो असर है रहीमुल्लाह खान। अरे नहीं भाई साहब, अल्लाह सब की दुआएं नहीं सुनता है। मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि मुझे भी इंसान ही रहने दो। जिस तरह तुम लोग मुझे पीर, दरवेश और फ़कीर बनाए दे रहे हो, और उससे मेरे ही गुनाहों में इजाफ़ा होगा, जो कुछ मैं नहीं हूँ। अगर वह ज़ाहिर करने की कोशिश करूँ तो उससे अल्लाह नाराज़ होगा, और बिला वजह मेरे गुनाहों में इजाफ़ा ना करो, तुम्हारी मेहरबानी होगी। मौलवी साहब ने बहर तौर उन लोगों की ख्वाहिश पूरी कर दी थी। झाड़ फूंक के बाद वो लोग चले गए, लेकिन मौलवी साहब की बीवी नसीरा बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा, रहीमुल्लाह साहब, अचानक तुम्हारी ज़ुबान बदल गई। क्या मतलब नसीरा, मैं समझा नहीं। इससे पहले तुम बड़े उल्टे सीधे चक्कर चलाते थे, अपने आप को पक्का और सच्चा फ़कीर और दरवेश ज़ाहिर करने की कोशिश करते थे। अब अचानक ही तुमने लोगों से कहना शुरू कर दिया कि तुम पीर फ़कीर नहीं हो। रहीमुल्लाह खान की आंखों में आंसू आ गए। चंद लम्हात वो अपने आप पर काबू पाने की कोशिश करता रहा, फिर बहराए हुए लहजे में बोला, नसीरा, कैसी बातें कर रही हो? तुम दिल की आग को नहीं जानती। अरे माजूर हो गया था मैं, बता, और इससे पहले कहीं हेर फेर करके एक पैसा भी गुनाह का तुझे खिलाया? बोल नसीरा, और ज़िंदगी तेरे साथ गुजरी है, जवाब दे मुझे। कभी किसी कोई ऐसे मौका आया और जब मैंने मेहनत की कमाई के अलावा कोई और कमाई तुझे खिलाई हो?
चलो माफ़ कर दो, गलती हो गई और मैं तो ऐसे ही मजाक में कह रही थी। नहीं नसीरा, मजाक भी अच्छा नहीं है। मुझे क्या खुद एहसास नहीं था? मैं तो हमेशा अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता रहता था अपने मौला करीम से। बहरहाल अच्छा आदमी था और मुझे बड़ी मसर्रत थी कि मैं इस आलम में भी उसके किसी काम आ सका और मेरी वजह से उसे यह सब कुछ हासिल हो गया। बहरहाल अब उसके बाद यहाँ रुकना मुनासिब नहीं था। मैंने फ़ैसला कर लिया कि आज रात यहाँ से निकल जाऊँगा और दुनिया बहुत वसी है, देखूँगा और मेरी दूसरी मंजिल कौन सी होती है। लेकिन मेरी दूसरी मंजिल मेरे अपने बस में नहीं थी। एक नए खेल का आगाज़ हो गया और ये नया खेल उस वक़्त शुरू हुआ जब ठीक दोपहर हो रही थी। सूरज आसमान के ऐन दरमियान में था और चिलचिलाती धूप पड़ रही थी। मौलवी साहब के दरवाजे पर दस्तक हुई। हालांकि सब लोग अंदर थे और धूप से बचाव का बंदोबस्त किए हुए थे, लेकिन उसके बावजूद मौलवी साहब ने किसी को नज़रअंदाज नहीं किया। मौलवी साहब की बेगम ने दरवाज़ा खोला और मैं भी अपने कमीन गाह से बाहर देख रहा था, लेकिन आने वाले जो अंदर आए थे उन्हें देखकर मैं भी चौंक पड़ा और उनके आने का अंदाज ऐसा था कि मुझे भी संभलना पड़ा। उनमें सबसे आगे वो काला नाग था जिसका नाम तीजा मिल लिया गया था और जो उस दिन ठाकुर प्रार्थना की हवेली के अहाते में मौजूद था। जब जसूनत मूर्ति सांप के कांटे का शिकार पड़ा हुआ था और ये शख्स थाली बजा रहा था, उसकी आमद खैर कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन जिस अंदाज में मौलवी साहब की बीवी को अंदर धकेल कर वो आया था उससे मैं ज़रा चौंका था। मौलवी साहब भी बैसाखी टेकते हुए बाहर आ गए। कौन है नसीरा, कौन है, क्या बात है? नसीरा का मुंह खौफ व हैरत से खुला हुआ था और उसी तरह खुला रहा और उसके मुंह से आवाज़ ना निकली। वो तीजा मिल को देख रही थी और दहशत ज़दा हो गई थी। तीजा मिल के पीछे 4 और ख़तरनाक सूरत सपेरे अंदर दाखिल हो गए, लेकिन ये बिल्कुल अजनबी चेहरे थे। यानी उन बाकी 2 सपेरों में से एक भी नहीं था जो उस दिन थाली बजा रहे थे। कोई दिलचस्प मामला ही शुरू हो गया था। सपेरे ने दरवाज़ा बंद कर दिया और उनमें से 2 ने लंबे लंबे छुरे निकाल लिए और छुरे देखकर मौलवी साहब की भी गग्गी बंद गई और उनकी बीवी बिल्कुल साकत हो गई थी। कोई जुर्म होने जा रहा था। अब मैं अंदर क्या करता, क्या होना चाहिए? और उस वक़्त बड़ी बेबसी महसूस कर रहा था कि मौलवी साहब ने खुद को संभाला और भराए हुए लहजे में बोले, अरे भाई क्या बात है, कौन हो तुम? शक्ल से तो सपेरे मालूम होते हो, लेकिन ये छुरे, कोई गलती हो गई हमसे भैया। हम तो बेदरर लोग हैं, ना किसी को नुकसान पहुंचाते हैं और ना। तीजा मिल आगे बढ़ आया और उसने मौलवी रहीमुल्लाह को घूरते हुए कहा। तीजा मिल आगे बढ़ आया और उसने मौलवी रहीमुल्लाह को घूरते हुए कहा, बड़े महात्मा हो महाराज, बड़े महान आत्मा हो। तुम पानी पर छींटे मारते हो, शीशनाग बुला लेते हो, बहुत महात्मा हो तुम। चलो हमने भी तुम्हें महात्मा मान लिया, मगर महात्मा जी और हमारा एक काम करोगे तो इसी में तुम्हारा जीवन, वरना तुम्हें मरना पड़ेगा अपनी तमाम आरज़ुओं के साथ जो तुम्हारे मन में हैं। काम बताओ भाई, काम बताओ, हमने कब मना किया है? अगर हमारे बस में होगा तो ज़रूर करेंगे। बस पानी पड़ो, छींटे लगाओ और शीशनाग को दोबारा बुला दो। काका क्या मतलब है तुम्हारा? मैं सपेरा हूँ, तीजा मिल नाम है मेरा और मुझे शीशनाग की ज़रूरत है। मगर शीशनाग हमारा ग़ुलाम तो नहीं है भाई। वो तो शायद तुम्हें यकीन ना आए। हम तो बिल्कुल नहीं जानते थे कि वो आ जाएगा। बस हमने दुआ मांगी थी कि हमारी लाज रख ले और हमारे सिवा हमारे मौला ने हमारी लाज रख ली। अगर हमारे बस में होता तो हम एक शीशनाग क्या, सांपों का पूरा कबीला तुम्हारे हवाले कर देते। अचानक एक सपेरे ने कुछ कहा और तीजा मिल चौंक कर इधर उधर देखने लगा और मैं उनकी गुफ्तगू पर ध्यान लगाते हुए था। तीजा मिल ने कहा, मुझे यकीन है कालू। हाँ महाराज, क्या आपका कालू को इतना ही कच्चा समझते हैं? आपका चेला हूँ, आप खुद सूंघ लीजिए। बू आ रही है मुझे, बस बास आ रही है शीशनाग की। और फिर उसके चेहरे पर अजीब से तासरात फैल गए। मगर क्या वो यहाँ रहता है? महाराज आप खुद गौर कीजिए, इसे मैं संभाल लेता हूँ, सपेरे ने कहा और तीजा मिल नाग उठा कर इधर उधर सूंघने लगा। फिर उसने कहा, तू ठीक कहता है कालू, शीशनाग महाराज आसपास ही कहीं मौजूद हैं। शीशनाग महाराज जीवन फिर तुम्हारी आरज़ू करता रहूँगा, जीवन भर तुम्हें तलाश किया। आज मेरा यह ख्वाब पूरा कर दो, मेरे सामने आ जाओ।
तो सुनो भाई, क्या बात है, हमारा क्या कसूर है, हमें तो बता दो। मौलवी साहब बोले, देख बुड्ढे, चुपचाप बैठ, अंदर और कौन कौन है? मियाँ कोई नहीं है, ये हमारी अहलिया है और 2-4 बच्चे, बस। हम तुम्हारा क्या बिगाड़ सकते हैं? मैं तो वैसे भी माजूर हूँ, तुमने देख लिया। जीना चाहता है तो उधर बैठ जा खामोशी से और उस कोने में, वरना सबसे पहले तुझे लछड़े मारकर हल्ला कर दूंगा और उसके बाद तेरी बीवी और बच्चों को। नहीं भाई, हाथ जोड़ते हैं, यहाँ हमारे पास जो कुछ भी है तुम ले जाओ, बस हमारी बीवी और बच्चों को कोई नुकसान मत पहुँचाना, हम वही करेंगे जो तुम कहोगे। बस तो फिर उधर बैठ जा और अंदर से उन लोगों को भी बुला ले। ए औरत, तू सुन रही है ना? जा अपने बच्चों को बुलाकर हमारे पास लाकर बिठा दे। खबरदार कोई किसी तरफ से बाहर निकलने की कोशिश ना करे। यहाँ आकर 100 आदमी भी आ गए तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देख, हमारे पास जो पटारे हैं ना, इनमें सांप ही सांप भरे हुए हैं। अगर हमने ये सांप छोड़ दिए तो ये पूरी बस्ती खाली हो जाएगी, क्या समझी? और तीजा मिल ने गुराते हुए लहजे में कहा। मैं ये तमाम तमाशा गहरी नज़रों से देख रहा था। कुछ अंदाज़ा मुझे होता जा रहा था कि तीजा मिल गालबन मेरे ही चक्कर में यहाँ तक आया है और उसने मुझे शीश नाग का नाम दे दिया था। ये बात मेरे जहन में भी थी और संथा की बस्ती में मुझे ये इल्म हुआ था कि शीश नाग सपेरों के लिए बड़ी दिलचस्पी का बाइस होता है। बहरहाल मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। खैर, बेचारे मौलवी साहब को जो तकलीफ़ हो रही थी वो अपनी जगह, लेकिन तीजा मिल अपनी शामत खुद बुला रहा था और उसके साथ आए हुए सपेरे इधर उधर फैल गए। दरवाजे पर खड़े हो गए कि बाहर से कोई आए तो उसे भगाया जा सके। उसके साथ आए हुए सपेरे इधर उधर फैल गए, दरवाजे पर खड़े हो गए कि बाहर से कोई आए तो उसे भगाया जा सके। तीजा मेल ने इधर उधर देखा और झोलियां उतार कर नीचे रख दी, जिनमें ना जाने क्या क्या भरा हुआ था, और उसके बाद उसने बीन बजानी शुरू कर दी। तीजा मिल शायद बहुत अच्छी बीन बजाता था। मुझे मालूम नहीं था कि वो बीन बजाकर क्या हासिल करना चाहता है, लेकिन अचानक मुझे एहसास हुआ कि ये बीन मेरे ज़हन पर असर कर रही है और ये बीन बजाकर तीजा मिल मुझे आसानी से गिरफ्तार कर लेगा। नहीं, ये ख़तरनाक बात होगी, मेरे लिए इंतहाई मुश्किल का बायस है। मैं भला क्या कर सकूँगा? लेकिन बीन की आवाज़ मेरे हवास छीने ले रही थी और बीन मधुर आवाज़ में बज रही थी और तमाम सपेरे झूम झूम कर बजा रहे थे। उस आवाज़ से मेरे हवास पर एक नींद तारी होती जा रही थी। मैंने सोचा कि फितरी तौर पर बहर तौर में सांप जैसी सरशत ही रखता था और बीन की आवाज़ मेरे हवास को मुतासर कर रही थी। मेरा दिल चाहा कि मैं यहाँ से निकल कर भाग जाऊँ, यहाँ ऐसा ही होना चाहिए। और उस वक़्त मुझे ख़तरा पेश आ गया था। तीजा मिल मेरी तलाश में आया और यकीनी तौर पर वो मुझे सांप की हैसियत से गिरफ्तार कर लेगा। मैंने जल्दी से अपनी जगह छोड़ी और दरख्त के उस तने से ऊपर निकल आया। मैं आहिस्ता आहिस्ता दरख्त की उन शाखों तक पहुंचना चाहता था जहां से दूसरी शाखों तक पहुंचा जा सके और उसके बाद यहां से फरार की कोशिश मेरे लिए मुश्किल ना होगी। लेकिन बीन की आवाज़ जैसे मेरे हवास पर मुसल्लत होती जा रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके शहर में गिरफ्तार होता जा रहा था और उसके बाद मेरे होशो हवास बिल्कुल ही मुअत्तल होने लगे। मैं दरख्त की शाखों में दूसरी जानब जाने की बजाय आहिस्ता आहिस्ता दरख्त के तने से नीचे उतर आया और उसके बाद तीजा मिल के सामने जा खड़ा हुआ। मेरे अंग अंग में नशा दौड़ रहा था। एक ऐसी अजीब सी कैफियत मुझ पर तारी हो रही थी कि इससे पहले मैंने ऐसा कभी महसूस नहीं किया था। मेरी आंखें बंद होती जा रही थीं, सर बेख्तियार झूम रहा था और जिस्म ऐसा हो गया था जैसे बेजान हो और उसमें ज़िंदगी की रमक ही बाकी ना रही हो। तीजा मिल और उसके साथी बड़ी खौफ व हैरत की निगाहों से मुझे देख रहे थे। तीजा मिल बड़े मस्त होकर बीन बजा रहा था। रफ्ता रफ्ता मेरी तमाम जहनी कुव्वतें सो गईं। मैं ना जाने किस आलम में पहुंच गया था। फिर बीन बंद हो गई और अचानक ही जब मेरे होशो हवास जागे तो मैंने अपने आप को एक बहुत ही मजबूत पटारी में बंद देखा। हाँ, मैं गिरफ्तार हो गया था। तीजा मेरे सपेरे ने मुझ पर काबू पा लिया था। मैंने दिल ही दिल में सोचा। पटारी इतनी तंग थी कि मेरे लिए जुम्बश करना भी महाल था। मैं उसमें बुरी तरह से भरा हुआ था, लेकिन मुझे अपना जिस्म हिलता हुआ महसूस हो रहा था। इसका मकसद है कि तीजा मिल मुझे साथ लिए हुए सफ़र कर रहा है। मैं काफ़ी परेशान हो गया।
एक बार फिर मेरे दिल में पदम चंदी का ख्याल आया और मैं इन लोगों को नीस्तो नाबूद करके फेंक देता, लेकिन पदम चंदी ने मेरी तमाम कुव्वतें सल्ब कर ली थीं और मैं उस हाल ही में था कि तमाम तर जिम्मेदारी पदम चंदी पर ही आयद होती थी। क्या करूं, लेकिन कुछ नहीं कर सकता था सिवाय वक़्त का इंतज़ार करने के। चुनाचा बेहाल ते मजबूरी तीजा मिल के कंधों पर सफ़र करता रहा। न जाने कब वक्त मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, और फिर शायद उन लोगों ने कहीं क़याम किया और बहुत से कदमों की आवाज़ें सुनाई दीं। ये एक दिलचस्प बात थी कि मेरी समाज से ज़्यादा तेज़ थी। हालांकि सांप के बारे में रवायत है कि उसके कान नहीं होते, लेकिन मैं सांप था कब? मैं तो इंसान था, और इंसान भी वो जिसे अजीबोगरीब कुव्वतें हासिल थीं। खैर, इन कुव्वतों को तो मैं अब मजाक समझ रहा था। मेरी अपनी कोशिश उस पटारी तक का ढक्कन नहीं खोल सकती थी। इस तरह मेरे अंदर ताकत नहीं रही और कुछ भी तो नहीं कर सकता था सवाए कीड़े मकोड़े की तरह ज़मीन पर रेंगने के। इन हालात में भला अपने तौर पर खुद अपना ही तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया भी जा सकता था, और मैंने दूर दूर तक की आवाज़ें सुनी, परिंदों के बोलने की आवाज़ें, जानवरों के दहाड़ने की आवाज़ें। गालबन तीजा मिल किसी जंगल से गुजर रहा था। फिर क़याम का एहसास हुआ। ये एहसास सिर्फ इस तरह हुआ था कि मुझे नीचे रख दिया गया और मेरा जिस्म साकत हो गया, यानी वो जुम्बश जो हिलने जुलने से हो रही थी बंद हो गई। मैं दम सादे खामोशी से पड़ा रहा। किसी की आवाज़ सुनाई दी, महाराज तीजा मिल, अब हमारा तीजा मिल हमारे महाराज कबीले के सरदार होंगे। हाँ, पापी घोराज मुझे 2 कौड़ी का समझता था। बिल्कुल महाराज, बिल्कुल। हालांकि आपने ऐसे ऐसे खतरनाक सांप पकड़े थे जिन्हें खोराज भी नहीं पकड़ सकता था।